हाँ जी बेटा, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰੋਟੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਗੇਂਦ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸਾਈਜ਼, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਉਹਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨਿਟ ਸਾਈਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮੂਗੀ ਮੈਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁਮਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈंने, ਆਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ, ਆਹ 2 ਬੜੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ 2 ਸਰਕਲ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ 10 ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ 20 ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ 50 ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣੂਗਾ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮੂਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਐਕਸਿਸ। ਮੇਰੇ ਸਭ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਕੀ ਨੇ, ਕੋਸੈਂਟਰਿਕ। ਕੋਸੈਂਟਰਿਕ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸੇਮ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫਰੋਥ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਮਿਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਮਿਡ ਜੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਿਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋਵੇ। ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ 'ਚ 1 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਜਾਂ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਮੋਸ਼ਨ ਨੇ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਬੋਡੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਸ। ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਸ ਵੈਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਕੈਨ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਸ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਸੌਰੀ ਇਫ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ in a given time it cover a distance much greater than its own size। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਉਹ अब जो डिस्टेंस तय कर रहा है वो बहुत ज़्यादा होवे ਉਹਦੇ अपने डिमेंशन के मुकाबले। जिवें एक ट्रक है 1000 किलोमीटर का सफर कर रहा है तो ट्रक का साइज 1000 किलोमीटर के सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो आप ऊपर देखिए सैटेलाइट तो देखिए तो 1000 किलोमीटर की सड़क के उपर जो आप ट्रक देखा तो सानू एक छोटे ਜਿਹੇ बिंदु वर्गा लगूगा। छोटे ਜਿਹੇ बिंदु भी नहीं शायद लगना है, तो उन्होंने ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਸ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ मोशन इन 1 डिमेंशन 2 डिमेंशन और 3 डिमेंशन। ये भी टाइप्स ऑफ मोशन ने। एक मोशन अगे डिमेंशन के वंडते हैं 1 डिमेंशन मोशन, 1 डिमेंशन मोशन, 2 डिमेंशन मोशन, 3 डिमेंशन मोशन। की चीज़ है ये 1 डिमेंशन मतलब कि जो कोई बॉडी सीधे रस्ते ते मूव करे, सीधे रस्ते ते बिल्कुल सीधी, ठीक है। जिवें एक सड़क है सीधी, छोटी जी सड़क है मान लो इन्नी वो उपर साइकिल जा रहा है बिल्कुल सीधा 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 सीधा, तो वो की हो गया 1 डिमेंशन मोशन। हुण तुसीं ऐ नहीं करना कि सड़क है जी, मान लो सड़क है साइकिल ऐ जा रहा है जी, तो ये 1 डिमेंशन नहीं है। जो साइकिल बिल्कुल सीधा जा रहा है तो ये 1 डिमेंशन है। मतलब एक डिमेंशन की होंदा है, तुहानूं मैं कल भी दस्सिया सीगा कि डिमेंशन जो बेस पावर होंदी है, जो पावर लिखी होंदी है बेस टर्म के उपर जी पावर होंदी है उपर डिमेंशन बोलते हैं। डिमेंशन आम तौर पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये डिमेंशन है। जिवें कमरा है, कमरे की डिमेंशन की ने, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना उच्चा है। तो जो 3 आम तौर पर 3 डिमेंशन होंगी ने अपने को, आप 3 डिमेंशन लेके चलते हैं 1 डिमेंशन 2 डिमेंशन 3 डिमेंशन। जिवें आप कहते हैं लंबाई चौड़ाई तो उचाई हैगी तो 3 लंबाइयां ने, पर जेकर तिनों चों इक्को चीज़ बदले मतलब इक्को ही होवे उहदे कोले, जिवें रस्ते की इकल्ली लंबाई, ठीक है, इधर उधर नहीं जा रहा, जो इधर उधर जाऊगा तो नाल चढ़ाई भी कवर कर रहा हो, सीधा जा रहा बिल्कुल तो 1 डिमेंशन। पर जे ऐ जा रहा जिवें आ लाइन मारी है फिर 2 डिमेंशन है, क्योंकि सीधा भी जा रहा है नाल ये इस पासे भी डिस्टेंस की कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ठीक है। जिवें आ साडे कोले ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, जब तुसीं तुहाडे कोल कैरम बोर्ड से देखिया, कैरम बोर्ड से डी इस तरह मार दो स्ट्राइकर, वो टक्कर मार के इधर चला गया, टक्कर मार के इधर चला गया, तो वो 2
डिस्टेंस तय कर रहा है, अगे नूं भी साइड नूं भी, ठीक है, अगे भी जा रहा है पर नाल साइड से भी जा रहा है, तो यह किहड़ा मोशन हो गया, एक 2 डायमेंशन मोशन हो गया, ठीक है। सो 1 डायमेंशन की डेफिनेशन लिखी है, अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच दे ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग विद टाइम, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, चाहे लेंथ चाहे ब्रेड्थ या हाइट, ठीक है। सेकंड हैगा अपने को 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन इज आउट ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद 2 कोऑर्डिनेट, ਉਹਦੇ 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे ने, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 डायमेंशन बोलांगे। जिवें कि साडे कोल कहंदा मैं स्नेक चलदा है, वो भी 2 डायमेंशन होंदा, इस तरह करके चलदा है, या कैरम बोर्ड की डीटी आप मारते हैं तो इधर उधर जांदियां ने, तो भी 2 डायमेंशन मोशन है। तो 3 डायमेंशन किहड़ा हो गया कि जो कोई बॉडी मूव करे तो तीन दे विचों तिन्ने कोऑर्डिनेट लेंथ ब्रेड्थ हाइट तिन्ने दे तिन्ने चेंज होण, ठीक है। जिवें एक एरोप्लेन उड़दा है, वो सीधा भी जा रहा है, इस तरह घूम भी रहा है, तो वो धरती तो की है उचाई भी है, अगे नूं भी जा रहा है, इधर उधर भी हो रहा है, मुड़ रहा भी है, तो धरती तो की है उचाई से भी है, तो वो तिन्ने कोऑर्डिनेट ने, तो उन्होंने की बोलांगे 3 डायमेंशन मोशन। तुसीं याद होगा, तुसीं ग्राफ बनाए ने 10वीं दे ग्राफ, इस तरह ग्राफ बनाते हैं, तुसीं देख पॉइंटां दे P 2 3, मतलब कि इधर नूं एक्स वाले पासे नूं दी वैल्यू 2 है, इधरले पासे नूं दी वैल्यू की है 3, हुण 2 डायमेंशन शो कर रहा है, एक एक्स वाले पासे नूं एक वाई वाले पासे नूं, दो चीज़ां सी, मतलब P की पोजीशन इस तरह की है भी इस पॉइंट तो ओरिजिन तो यह एक्स वाले पासे नूं भी कुछ बदल रहा तो वाई वाले पासे नूं, जे ये पॉइंट मैं इत्थे ला लैंदा P तो यह 1 डायमेंशन है, सिर्फ एक्स वाले पासे नूं है, जे इत्थे ला लैंदा तां भी 1 डायमेंशन है, सिर्फ वाई वाले पासे नूं है, ठीक है। हुण तुसीं 11वीं च हो गए हो तो तुहानूं अगे जिहड़ा ग्राफ आऊगा वो 3 डायमेंशन भी आऊगा, वो जेड भी आ जाता एक, तो पहला सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर आप जेड दिखा नहीं सकते, पर जो आप दिखाना होगा तो किवें दिखावांगे, एक्स इधर भी होगा वाई ते जेड, तो जेकर एक इत्थे पॉइंट है इस जगह पर तो एक्स वाले पासे भी कोई वैल्यू है, वाई वाले पासे भी कोई वैल्यू है, जेड वाले पासे भी वैल्यू है, तेन बोलांगे आप 3 डायमेंशन, ठीक है। तो जो एरोप्लेन उड़ता है तो तिन्ने चीज़ां बदलदियां ने, तो 3 डायमेंशन हो गया अपने को। अगे जो अज दसिया साडे लास्ट टॉपिक के लास्ट स्केलर ते वैक्टर, वैसे तुसीं यही जी चीज़ है स्केलर वैक्टर, तुसीं 9वीं क्लास दे विच यह पढ़ी हुई है, जिन्होंने आप सदिश राशियां ते अदिश राशियां भी कह दिंदे आ, ते अंग्रेजी च स्केलर, स्केलर नूं पंजाबी च अदिश ते अंग्रेजी च वैक्टर ते पंजाबी च कहते हैं सदिश, तो नाम से पता लग रहा है स्केलर क्वांटिटीज। Quantities which have only magnitude but no direction, मतलब जिन्होंने सिर्फ मात्रा होंगी है, दिशा नहीं होंगी, यही जिहड़ी चीज़ है। उदाहरण तौर पर मास, हुण मैं पुछदा कि तुहाडा मास कितना, मेरा मास कितना, कहते 80 किलो जी, 80 किलो एग्जाम्पल ले लो, तो 80 किलो जिवें मर्जी माप लो, चाहे मैनू खड़ा करके माप लो, चाहे पा के माप लो, चाहे बिठा के माप लो, चाहे मेरा मुँह उत्तर कन्नी कर लो, पश्चिम कन्नी कर लो, चाहे दक्षिण कन्नी कर लो, ठीक है, चाहे मैनू विंगा रख लो, चाहे डेढ़ा रख लो, जो भी तुम मैनू तोल लोगे तो मेरा मास कितना होगा 80 किलो। टाइम पीस है, टाइम पीस से पूछे टाइम कितने बजे ने, पता 1:10 हो गए, तो टाइम पीस में जिहड़े मर्जी दिशा चो देख लो, जिवें मर्जी करके देख लो, तो टाइम की है 1:10 ही है। दिशा बदलने के नाल उहदी वैल्यू नहीं बदल रही, दिशा बदलने के नाल उहदी वैल्यू नहीं बदलती, समझ लगी मेरी गल। तो जिहड़ियां चीज़ां दी वैल्यू दिशा के उपर डिपेंड नहीं करती, दिशा जो मर्जी हो, चाहे उन्होंने जिवें मर्जी करके देख कर लो, पर उसकी वैल्यू के विच कोई फर्क नहीं पैंदा, उन्होंने आप बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। मास हो गया, टाइम हो गया, टैंपरेचर हो गया, मैंने कहा टैंपरेचर कितना 37 डिग्री है बॉडी का, जिवें मर्जी पता कर लो, सुत्ते का पता कर लो, बैठे का पता कर लो, पए का पता कर लो, खड़े का पता कर लो, जिधर मर्जी मूँह करा के पता कर लो, तो 37 रहूगा। तो जिहड़ियां क्वांटिटीज की वैल्यू डायरेक्शन से डिपेंड नहीं करती, उन्होंने बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ये बहुत सारिया ने, मास, टाइम, टैंपरेचर, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी, ऊर्जा, तो सारी वैल्यूज की ने स्केलर क्वांटिटीज ने।
दूजा हमारे को आ गया वैक्टर क्वांटिटीज। वैक्टर किहड़ियां हो गईयां जिस दोने होण क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी है तो डायरेक्शन भी है। मतलब उदाहरण के तौर पर जो आप गल करिए फोर्स, सब तो सौखा भी समझना है फोर्स, ठीक है, जो पंजाबी कहते हैं बल। हुण तुसीं ये देखो जेकर एक मेज है, मान लो एक मेज पे है, जे मैं मेज नूं इस पासे लेके जाना है तो मैं मेज नूं इधरों धक्का मारा तो देखो कितना जोर लगूगा। उसे मेज नूं जेकर मैं इस तरह फड़ के टेढ़ा फड़ के इस तरह करा, खड़ा इधरले पासे आ मेज है, मैंने टेढ़ा इस तरह करा तो देखो कि सेम बल लगूगा। जे मैं इस तरह धक्का तो जब उधर जा खिंचा, जब मैं इस इत्थे करके मैं धक्का कि बल की मात्रा उन्नी लगूगी नहीं। अलग अलग थां तो अलग अलग दिशा चो खड़ के बल लगाने नाल बल की मात्रा अलग अलग लगूगी, ठीक है। तो अजिहियां क्वांटिटीज जिन्हां दे विच दिशा बदलण दे नाल उन्हां दी मात्रा बदल जाती है, उन्होंने आप बोलते हैं वैक्टर क्वांटिटी। उसकी सब तो बेस्ट एग्जाम्पल है फोर्स। होर बहुत सारिया ने, विलोसिटी कल पढ़ी थी अपने, आप दो चीज़ां पढ़िया सी, स्पीड ते विलोसिटी। स्पीड स्केलर है, विलोसिटी वैक्टर है, ये अगे कल नूं पढ़ांगे, ठीक है। एक्सेलरेशन है, ये वैक्टर है। मोमेंटम पढ़िया सी कल अपने, वो भी वैक्टर है। बहुत सारिया होर इहदियां एग्जाम्पल्स ने। एक इन्होंने लिखने का तरीका भी अलग अलग है। जो आप स्केलर लिखते हैं तो स्केलर के ऊपर सिंपल लिखता कि मास एम, पर जे मैं विलोसिटी लिखनी है तो विलोसिटी के ऊपर मैं इस तरह तीर पाऊंगा। मतलब ये तीर की दसदा है कि इसकी दिशा किहड़ी है, किधर तो किधर को जा रही है बॉडी, ठीक है। तो इन्हों के लिखने वास्ते कोई तीर नहीं पाना पैंदा, इन्हों लिखने वास्ते तीर पाना पैंदा। स्केलर की जी वैल्यू है वो कभी भी नैगेटिव नहीं होगी, नैवर नैगेटिव। कदे तुसीं नहीं सुनोगे कि मास कितना जी -80 किलो है, कदे नहीं सुनोगे, ठीक है। 8 किलो है, -8 किलो है, कदे नहीं होंदा जी। पर इन्हां दी वैल्यू नैगेटिव होंदी है। किवें? हुण वैल्यू नैगेटिव नहीं होंदी, नैगेटिव ये शो करता है कि जिधर को पहला डायरैक्शन सी उहदे ओपोजिट हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैं ए तो बी जा रहा, मान लो ए तो बी 30 की विलोसिटी नाल, 30 मीटर पर सैकेंड की विलोसिटी है किधरों ए तो बी। पर जे मैं बी तो ए आऊँगा तो ये वैल्यू की हो जाएगी -30 मीटर पर सैकेंड, ठीक है। ये मुकाबले ए तो बी के मुकाबले जो मैं लिखूंगा बी तो ए तो की हो जाएगी -30 हो जाएगी। तो माइनस का मतलब की होंगे कि इनकी डायरैक्शन की है बदल गई, डायरैक्शन उल्ट हो गई। तो इन्हों की वैल्यू कभी भी नैगेटिव नहीं होंगी, इन्हों की वैल्यू नैगेटिव हो सकती है, होंगी है नैगेटिव, ठीक है। तो ये इन्होंने मेन की ने डिफरेंस ने कि डायरैक्शन होंगी नहीं, होंगी है, वैल्यू कदे नैगेटिव नहीं होंगी, हो सकती है। इन्हों लिखने वास्ते एरो की लोड़ नहीं पैंदी, इन्हों लिखने वास्ते एरो की लोड़ पैंदी है। हाँ जी, एक टॉपिक आप होर करांगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, की चीज़ है जिन्होंने आप पंजाबी च कहने दूरी, नौवीं सीगा विस्थापन, दूरी ते विस्थापन। तो दूरी की है, हुण इत्थों चलिया मैं इत्थे ए तो बी गया आ रस्ते, हो सकता मैं पहला इत्थे सी ते गया फिर इत्थे गया, या हो सकता पहला मैं डी ते गया फिर सी ते गया फिर इत्थे गया। तो ए तो बी ते गया बस, ठीक है, जिवें मर्जी गया। मान लो ये रस्ता सी 200 मीटर का, आम वाला रस्ता साढ़े को हैगा सी वो 300 मीटर का, जे मैं ए तो सी होके गया तो 350 मीटर का। तो मेरा मकसद सिर्फ ए तो बी जाना है, किवें गया, किहड़े रस्ते तो गया, किहड़ी दिशा च गया, इसका कोई मतलब नहीं। तो जदों असी की मारते हैं दूरी की है, इट इज़ द
ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰਡ ਜਾਂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਪਾਥ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਵਰਡ, ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਚੱਲੇ, ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਪਨ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। A ਤੋਂ B ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਰਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ, 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਰਸਤਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਵਿਸਥਾਪਨ ਬਣੂਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕਿ A ਤੋਂ B ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਲੇ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਪਾਥ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਵਰਡ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੱਲੇ, 200 ਮੀਟਰ ਚੱਲੇ ਜਾਂ 300 ਜਾਂ 350, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ। ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ 'ਚ। ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ, ਨੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਓ, ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਉਹੀ ਬਣੂਗੀ ਜਦੋਂ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ 'ਚ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਸੇਧ 'ਚ ਸਿੱਧੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੇਲਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਐਰੋ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਐਰੋ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ A ਤੋਂ B ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 10 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ A ਤੋਂ B ਗਿਆ ਤਾਂ 10 ਮੀਟਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ B ਤੋਂ A ਆਇਆ ਤਾਂ -10 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ A ਤੋਂ B ਗਿਆ, ਫਿਰ B ਤੋਂ A ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ -10 ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ 400 ਮੀਟਰ ਦਾ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਭੱਜ ਕੇ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਪਾਥ ਕਵਰਡ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, 400 ਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ 400 ਮੀਟਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਪੁਆਇੰਟ। A ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਸ ਮੂੰਹੇ ਬਦਲੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਮੈਂ 400 ਮੀਟਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, 0 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ A ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ B ਤੇ ਗਿਆ, B ਤੋਂ ਵਾਪਸ A ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ 10 ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ A ਤੋਂ B ਤੇ ਗਿਆ, B ਤੋਂ ਵਾਪਸ A ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 0। ਇਹ 0 ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ 10 ਗਿਆ ਸੀ -10 ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, 0। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਇਹ 10 -10, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ 10 + 10 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ 20 ਆ ਜਾਊ ਆਨਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਵੀ A ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, B ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ A ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 0 ਆਨਸਰ। ਤਾਂ 0 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਜੇ A ਤੋਂ B ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ B ਤੋਂ A ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ।